12 بجے میں کہتے ہیں خوشامدید اہم خبروں کے ساتھ میں اساریہ صاحب اور میں ہوں مطاہر جلیل خان۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ دنیا ابھی کورونا کی قہر سے نکلی ہی نہیں تھی تو قبرص نے کورونا وائرس کا نیا ویریئنٹ سامنے لا دیا ہے۔ حکام نے 25 افراد میں ڈیلٹا کرون نامی ویریئنٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نیا ویریئنٹ ڈیلٹا اور اومیکرون کا مجموعہ ہے جس کا جینیاتی پس منظر ڈیلٹا وائرس سے ملتا جلتا ہے اور اس میں اومیکرون کی بھی کچھ تبدیلیاں پائی گئی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ویریئنٹ سے ہونے والی تبدیلیوں کا مزید جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے قبل کرونا کی اقسام ڈیلٹا، اومیکرون اور ویریئنٹ IHU نے بھی متعدد ممالک میں تباہی مچا رکھی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کرونا وائرس کی 5ویں لہر دن بدن زور پکڑنے جا رہی ہے اور تازہ لہر میں پہلی بار شرح 3.5% سے اوپر چلی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1600 افراد کے ٹیسٹ بھی مثبت آئے ہیں جبکہ 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کورونا وائرس کچھ وقفے کے بعد دوبارہ زور دکھا رہا ہے۔ 5ویں لہر میں پہلی بار شرح 3.5% سے اوپر جا چکی ہے۔ رپورٹ ہونے والے کیسز میں کورونا کی افریقی قسم اومیکرون کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.66% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے 45,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1,649 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ جان لیوا وائرس سے مزید 3 مریض انتقال کر گئے۔ کورونا کی 5ویں لہر میں وہ شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں جنہوں نے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوا رکھی تھی، تاہم ان میں وائرس کی علامات اور سنگینی انتہائی کم ہے۔ یہ اومیکرون جو ہے نا اس کے لیے میں عوام سے بات کروں گا کہ یہ اس کی تھوڑا پھیلاؤ تھوڑا تیز ہے، یہ بہت جلدی پھیلتا ہے لیکن اس کے جو علامات ہوتے ہیں اس سے اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے ڈیلٹا کے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس اومیکرون سے بچنے کے لیے آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور لوگوں سے مخصوص فاصلہ قائم رکھیں۔ کیسز میں اضافے کے باوجود عوام احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ سے سیریسلی سمجھ نہیں پا رہے، اگر سمجھ لیں گے تو ان کے لیے فائدہ نہیں ہو تو ان کے لیے نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے کی طرح جو احتیاط گورنمنٹ نے کی ہے وہ کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہماری جو قوم ہے اس کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کی طرف انہوں نے توجہ نہیں، جب آخر پہ کام آئے نا تو پھر انہوں کرنا۔ ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کے مطابق اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ احتیاط جسے کہتے ہیں وہ کرنے والی قوم ہم نہیں ہیں۔ ایک چیز جب حد کو پہنچ جائے تو اس کے بعد شاید ہمیں لگتا ہے کہ یار ہاں اب احتیاط کرنی چاہیے جب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حکومت کا جو کچاؤ ہے وہ اوپر سے ہٹ گیا ہے، عوام نے بھی یہ سوچ لیا کہ یار یہ چیزیں ہو گئی ہے مذاق سی۔ ملک میں اب تک کورونا سے 13,05,707 افراد متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے 12,58,987 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں اومیکرون کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 24 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ صوبے میں اب تک 319 مریضوں میں افریقی قسم کی تصدیق ہو گئی ہے جن میں سے 306 افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔ راولپنڈی اور ساہیوال سے 4 شیخوپورہ سے 2، فیصل آباد اور بہاولپور سے 1 مریض رپورٹ ہوا ہے۔ احتیاط کریں ورنہ لاک ڈاؤن کی جانب جانا پڑ سکتا ہے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے خبردار کر دیا، کہتی ہیں لاہور میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، عوام ویکسین ضرور لگوائیں، ویکسین ہی کورونا وبا کی شدت سے بچا سکتی ہے۔ آج کووڈ کا سامنا ہمیں پھر کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور کے لوگوں کو کہوں گی کہ خدارا ماسک پہنیے، کوشش یہ کریں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر بھی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، آج کے دن میں 5 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ نہ ہو کل پھر سمارٹ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا پڑے۔ تو میں لاہور کے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، لوگوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ مہربانی کر کے ویکسینیشن کروائیں، اور اگر ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور 6 مہینے ہو گئے ہیں تو مہربانی کر کے بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ اور دوسری اہم چیز ہے کہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز، ماسک پہننا وغیرہ، ہاتھ دھونے، سوشل ڈسٹینسنگ، ان سب کی بڑی ضرورت ہے۔
सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, एक बार फिर वबा में तेजी से इजाफा हो रहा है। अवाम एहतियात करें, वैक्सीन नहीं लगवाई तो फौरी लगवाएं, जिनकी वैक्सीन हो गई है वो बूस्टर डोज लगवाएं। NCOC ने वो काम कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। कोरोना का मर्ज जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिस तेजी से इस वक्त वबा के अंदर इजाफा हो रहा है, जो बिल्कुल बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं उनको जरूर फॉलो करें, मास्क जरूर पहने। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। अगर एक डोज लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज के लिए जरूर फौरी तौर के ऊपर जाएं। और अगर आपकी 30 साल से ज्यादा उम्र है और आपकी दूसरी डोज लगे हुए आपको, या आप सिंगल डोज वैक्सीन आपको लगी थी और आपको 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, तो बूस्टर डोज जो है वो फौरी तौर पर जरूर लगाएं। यही इसका बेहतरीन दिफा है NCOC की, और जो उसके अलावा फेडरल और प्रोविंशियल टीम्स हैं जिन्होंने लिटरली वो काम करके दिखाया है जो सोच नहीं सकते थे लोग होगा। कराची से अभी आपको खबर दें, जहां कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाजमीन ने एक बार फिर OPDs का बॉयकॉट कर दिया है। मुल्क भर से दिल की बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले मरीज शदीद अजियत का शिकार हो चुके हैं। एहतजाजी मुलाजमीन का मुतालबा है कि 15 माह से कोरोना अलाउंस नहीं दिया गया, उसे फौरी तौर पर जारी किया जाए। कोरोना के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल भी किया जाए। और अभी हम आपको लाहौर ले जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये रियासत मदीना का दावेदार इमरान नियाजी बनी गाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज किसान जो है वो खाद के लिए जगह जगह पे खवार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता और फिर इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। और मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा, शहबाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा SOP बना हुआ है कि ये पॉकेट्स हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है। मुख्तलिफ इंजीनियर्स को वो चीजें एलोकेट की जाती थी कि आपने यहां पे ड्यूटी देनी है। और शहबाज शरीफ खुद टेलीफोन पर IGP से राब्ते में होते थे कि कितना काउंट हो गया मरी में, अगर काउंट इससे बढ़ जाए तो गाड़ी आपने बंद कर देनी है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहां पर एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका कैमरास नस्ब है, आपका ट्रैफिक काउंट मौजूद है। तो ये बुज़दार साहब कहां पर नींद के मजे ले रहे थे जब लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे किसी मसीहा को कि आए हमारी मदद करें। वो जो नवीद मरहूम ASI 8 लोग एक ही खानदान के, उसकी फोन कॉल पूरी कौम ने सुनी कि 22 घंटे हो गए हैं और अल्लाह से दुआ है कि कोई हमारी मदद को आए। तो ये जो इमरान नियाजी साहब बनी गाला से रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सफर जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहां पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहां पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहां था जब लोग चीख रहे थे कि आओ हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाजी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इंशाल्लाह तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब्ज़ बाग दिखाए, तुमने कौमी जुर्म किया। और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेजोल्यूशन डालने जा रहा हूं जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाना नहीं देंगे। और तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की
फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया है इमरान नियाजी। अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे। तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए, और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। तो आज सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मैंने अपने बाप की जिंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान नियाजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा महंगाई का शिकार है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई। ये बोलता ज्यादा है, सोचता कम है। कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूं, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन इसका हिसाब इमरान नियाजी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुजदार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहां पर क़यामत सुगरा टूट गई खानदानों पर, और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहां पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं। ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इनके लिए कोई माफी नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज जमी बोस है, हर जगह जहां उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान नियाजी को इसको हिसाब देना होगा। इसको अवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर, उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है,
तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इस जालिम नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आईनी रास्ता अपनाया जाए, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है। ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मजीद इंतजार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल है खान साहब, दो तीन सवाल बदर हुआ है। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये साबित हुआ है कि इनकी नेग्लिजेंसी है कि कोई मशीनरी इनके पास नहीं थी। वो कह रही थी सड़कें टूटी हुई थी 2 साल से, तो जिसकी वजह से बर्फ वहाँ पे फंस गई, गाड़ियाँ स्लिप हुई और होटल मालकान ने वहाँ पर जो कुछ किया 50-50, 70-70 हज़ार रुपए किराए के लिए लोग मजबूर हुए हैं गाड़ियों में सोने के। मैं बता दूं पाकिस्तानी कौम को, रहनुमा लाहौर में इस वक्त रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका एक हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन नैब को पेश होना पड़ेगा अदालतों में, बताना पड़ेगा ये जाली केस क्यों बने, बताना पड़ेगा कि मुल्क में जो करप्शन हुई है वो खामोश क्यों रहा है। ये इंसाफ का निजाम होता है। किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि जुल्म करे, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि जाली केस बनाए। बताए ना चेयरमैन नैब आकर कि 4 साल में उसने कितने सियासतदानों के खिलाफ केस बनाए हैं और वो केस क्या है। ये हकीकत है सारी नैब की, और जो नैब ने मुल्क के अंदर तबाही फैलाई है, आज कोई अफसर भी फैसला करने को, काम करने को तैयार नहीं है। आज जो मुल्क की मुश्किलात है उसमें नैब का बड़ा हिस्सा है, और ये वो हुकूमत जो कहती है हम नैब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन नैब को इस्तिस्ना के खत जारी करते हैं, इनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। जनाब आप क्या कहना चाहते हैं जो मरी में अमवातें हुई है? मरीज से आप भी कामयाब होते रहे, अभी दूसरे हैं, देखें 24 घंटे तकरीबन लोग। शाहिद अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। और अभी आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने मरी के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। इमदादी पैकेज 30 करोड़ 35 लाख रुपए रखा गया है, जिससे जाबहा अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों को इमदाद फराहम की जाएगी। तूफान के दौरान गिरने वाले घरों के भी नुकसान का तखमीना लगाकर भरपाई की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर। जी सलीम शेख, बताइएगा क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरह से लोगों को रिफंड किया जाएगा और उनकी बेहतरी के लिए पैसे दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जो पंजाब हुकूमत ने जो है वो इसमें जो नुकसान हुआ है उनके लिए एक इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज जो है सिर्फ जाम बाग होने वाले अफराद के लिए इमदाद का ऐलान किया गया था, जिसकी जो मदद है 8 लाख रुपए फी कस की जानी थी, जबकि जख्मियों के लिए भी इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। और जिन लोगों के घर और कोई गाड़ियां वगैरह तबाह हुई हैं उनके लिए भी जो है माली इमदाद का ऐलान किया गया। मजबूरी तौर पर अब तक जो तखमीना लगाया गया है नुकसान का वो 3 करोड़ 35 लाख रुपए बनाया गया है, और ये जो है 1 से 2 रोज में जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से फराहम कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख, तफसीलात से आपने आगाह किया। सानिहा, मरी के बाद मैसूर सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। राबता सड़कों से बर्फ हटा दी गई है, लेकिन मुतादिद इलाकों में बिजली ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। सानेहा मरी, हर आंख अश्कबार, हर दिल सोगवार। मरी में सूरत हाल मामूल की जानिब लौटने लगी, लेकिन जिंदगी के रंग फीके पड़ गए। तीन दिन के ऑपरेशन के बाद राब्ता सड़कों से बर्फ हटा दी गई है। महसूर सयाहों के इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका है। तूफान के बाइस बिजली और पानी की फराहमी मुतासिर हुई, उसे अब तक बहाल नहीं किया जा सका। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर है। मरी को जाने वाले रास्ते आज भी बंद हैं। इंतजामिया मलका कोहसार का रुख करने वाले सयाहों को वापस भेज रही है। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है।
एबटाबाद के सयाहती मुकाम इलाका गलियात में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बर्फबारी के बायस सयाह गलियात में महसूर होकर रह गए। मवासलात का निजाम भी ताहाल बहाल ना हो सका है। मुकामी आबादी को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद चौधरी। गिलियात में होने वाली रिकॉर्ड साज बर्फबारी ने तबाही मचा दी। सड़कें बंद, बिजली के खंभे टूट गए, पानी पाइपलाइनों में जम गया, बिजली और टेलीफोन का निजाम दरम बरम हो गया, हजारों सियाह फंस गए। अभी हम नशा गली से आ रहे हैं, लेकिन मोइतारा से जो रोड बिल्कुल क्लियर है और कलाबार से नीचे तो बिल्कुल शीशा किया हुआ है और बहुत अच्छा रोड खोल रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी क्या करें, बर्फ बहुत ज्यादा हो गई है, उनके बस में भी काम नहीं है, लेकिन जो है ना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं जीडीए वाले। सियाहों का कहना है कि हम नथिया गली में महफूज हैं और जीडीए के एहलकार रोड खोलने में मसरूफ हैं और जैसे ही गाड़ियां चलने लगी हम नथिया गली से निकल जाएंगे। यहाँ पे बर्फ जो है इस बार कुछ ओवर है, कुछ ज्यादा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तमाम रिंग रोड बंद होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हम मरीज अस्पतालों तक नहीं ले जा सकते। मेन रोड तो जीडीए खोलने में मसरूफ है, मगर लिंक रोड कोई नहीं खोल रहा। तमाम राब्ता सड़कें बंद है, तमाम मेन मरी रोड बंद है। हम अपने मरीजों को अस्पतालों में नहीं ले जा सकते हैं। जीडी तर्जुमान का कहना है कि हमने कई मकामात से मरी रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया है और बाज मकामात अभी बंद हैं। इनको भी खोलने में हैवी मशीनरी लगी हुई है। नथेगली बाजार है उसको खोल दिया गया है। इसी तरह हमने जो बगनोतर से डोंगा गली का ट्रैक था इसको हमने ओपन कर दिया है। छांगला गली से बाड़ियां तक का 8 किलोमीटर का जो ट्रैक था उससे स्नो को हमने रिमूव कर दिया है। आज के दिन में हमने तकरीबन 200 से 250 गाड़ियों को यहाँ से रेस्क्यू करके महफूज तरीके से एबटाबाद की तरफ हमने रवाना कर दिया है। शदीद बर्फबारी के बायस लाखों की आबादी घरों में महसूर होकर रह गई, जिसकी वजह से इन इलाकों में अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो गई है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत व इंतजामिया फिलफोर तमाम लिंक रोड्स को भी ट्रैफिक के लिए बहाल करवाए ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। मोहम्मद शाहिद चौधरी, आज न्यूज गिलियात, एबटाबाद। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास के, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन और एहसन इकबाल के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई और एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर खजाना कमेटी के सामने मौजूद हैं, इन्हें अपना लहजा दुरुस्त रखना चाहिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज यासिर नजर से। यासिर, बताइएगा क्या अहवाल है इस इजलास का? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी खजाना इसका इजलास हुआ है। इसमें शौकत तरीन और जो एहसन इकबाल हैं उनके दरमियान खासी गर्मा गर्मी हुई है, जिससे एहसन इकबाल ने कहा कि अगर कोई इस तरह की चीजें करे तो चेयरमैन कमेटी से इस्तदा की कि इनको कोई भी अगर इस तरह का सख्त रवैया अपनाएगा तो उसको कमेटी में मौजूद नहीं होना चाहिए। जिससे चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अगर कोई भी इस तरह का रवैया अपनाएगा तो हम उसको कमेटी से निकाल देंगे। जिस पर वजीर खजाना जो थे उनकी तरफ से कहा गया कि मैं मुंतखब सेनेटर हूँ और आपके सामने बैठा हूँ और आपके तमाम सवालात जो हैं उनके जवाबात भी दे रहा हूँ। तो जिस पर एहसन इकबाल ने कहा कि हम कोई बच्चे नहीं है कि आप हमें समझा रहे हैं, आप अपना लहजा नरम रखें और नरम लहजे में बात करें। ताहम काफी देर ये गुफ्तगू शदीद होती रही, आपस में तकरार चलता रहा और उसके बाद में शौकत तरीन एहसन इकबाल ने कहा कि अब आपका रवैया नरम हो गया और इस रवैये के साथ अब आप बात करें तो ये हमें भी अच्छा लग रहा है। दोबारा से इनके आपस में जो मामला। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, इसकी तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए कर्ज से मुतालिक IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का इजलास मौखर कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मौखर किया गया है। वजारत खजाना की दरख्वास्त के मुताबिक फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में जेर बहस है। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने के बाद इजलास 28 या 31 जनवरी तक बुलाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन EVM पर होंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबरी फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन को मशीनें मुहैया कर देंगे। EVM से इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, वोट जाया नहीं होगा। इस्लामाबाद के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो EVM के थ्रू होंगे। इनिशियली ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए उनको हम अगले हफ्ते मशीनें मुहैया कर देंगे, एक मखसूस तादाद, जिसपे कि वो अपने अमले को ट्रेन भी करेंगे और उसको में जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसको भी वो देख लेंगे। जब टेस्टिंग के वक्त हम गए और उन्होंने जो एडिशनल चीजें मांगी थी वो भी इनकॉर्पोरेट हो गई हैं मशीन में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये तीनों अहदाफ हासिल होते हैं कि इलेक्शंस साफ शफाफ भी होंगे, एक्यूरेट भी होंगे और ट्रांसपेरेंट भी होंगे। कोई वोट जाया नहीं होगा। एक शख्स की भी रायदही जाया हो जाए तो वो एक बदकिस्मती होती है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिए।